ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ حضرت اللہ خطیب ہندوستان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد صاحب قبلہ لکھنوی تشریف فرما ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کمیٹی کا جو حکم تھا اس کے مطابق میں کام کر رہا ہوں، اور میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جتنی دیر بیٹھے تھے انشاءاللہ اتنی دیر اور بیٹھیں گے۔ بھائی میرے پیر سے بیٹھ جائیں، آپ ادھر نہ پیر کریں۔ میں اپنی بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو ظاہر سے بات ہے آپ اپنے علماء کا ادب کریں گے تو یہ سوچیے کہ میں نے اپنے نبی کا احترام کر لیا، اور پھر یہ نبی کا جلسہ ہے۔ یہاں تو ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک ترس نفس گل کردہ بنی آئے جنید و بایزید جا، تو اس کا لحاظ کیا جائے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد صاحب قبلہ لکھنوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنا خطاب نایاب، اپنی اصلاحی کرسی لے اپنا خطاب نایاب، اپنی گفتگو اور اپنا اصلاحی بیان جو ہے اپنے منتخب شدہ کلمات کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ حضرات جتنی دیر شاید کہ آپ بیٹھے ہیں اتنی دیر اب آپ کو نہیں بیٹھنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر یہ جلسہ اختتام کی منزلوں کو قریب سے دیکھے گا، اور آپ حضرات دعا اور سلام میرے آقا پر پڑھ کے اپنے گھر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ وقت جو ہے آپ کو فجر کے وقت تک پہنچا دے گا، پھر فجر کی اذان ہوگی اور آپ نمازیں پڑھ کر کے محبت سے آپ اللہ کو یاد کر کے سو جائیں گے۔ اس لیے بیچ میں جلسہ ختم کرنے سے مقصد حل نہیں ہوتا ہے کہ ابھی سو جائیں گے تو نمازیں فجر چلی جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ حضرات کچھ دیر اور اپنا وقت دیں۔ حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ لکھنوی کی تقریر سماعت فرمائیں۔ الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بہت سارے نوجوان بچے ادھیڑ عمر کے لوگ مجمع سے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے کہ ابھی بارش ہونے والی ہو اور بھیگنے کا انہیں خوف ہو۔ یہ نوجوان آخر کس لیے بھاگ رہے ہیں کہ کہیں اللہ اور رسول کی بات میرے کانوں سے نہ ٹکرا جائے؟ کیا اس لیے آپ اس جلسے کو چھوڑ رہے ہیں کہ کہیں مجھے نماز کی دعوت نہ دے دی جائے؟ کیا آپ اپنے گھروں کی طرف رخ اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں تمہیں رسول اللہ کی سنت پر چلنے کو نہ کہہ دیا جائے؟ یاد رکھو جائز کے مسلمانوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت تقریر کا نہ رہا، مگر میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، رات کے 3 ہی تو بجے ہیں، تمہارے سر پہ تلواریں تو نہیں چلائی جا رہی ہیں؟ رات کے 3 ہی بجے ہیں، تمہارے سینوں پہ تیر نہیں برسائے جا رہے ہیں، سرد موسم ہی تو ہے، یزیدیوں کے اسلحے تو نہیں چل رہے ہیں تمہارے اوپر، تم کیسے حسینی ہو اور وہ کیسے حسینی تھے جو حسین کے ساتھ آئے؟
यजीदियों की तलवारों को देखते हैं, यजीदियों के असलहों को देखते हैं, उनके मंसूबों को देखते हैं, उनकी साजिशों को देखते हैं, तो अपने साथियों से हुसैन कहते हैं, मेरे साथियों अभी तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी बीवियां होंगी, तुम्हारी माएं होंगी, तुम्हारी औलादें होंगी, तुम्हें छूट है तुम जा सकते हो, तुम्हें इजाजत है तुम जा सकते हो, तुम अभी जीना चाहते हो तो जी लो, अगर तुम दुनिया में रहना चाहते हो तो रह लो। हुसैन तो जान देने ही आया है, तुम क्यों अपनी जान दे रहे हो? तो हुसैन के साथियों ने कहा था, मेरे इमाम आप क्या कह रहे हो? आपको छोड़कर हम चले जाए, आपको छोड़कर हम चले जाए, हो ही नहीं सकता। जब तक हमारे सीनों में दम है, हम आपके कदमों को छोड़कर करबला से नहीं जा सकते। आज जब ट्रेनों में हमें मारा जाता, आज जब बाजारों में हम पे जुल्म किया जाता है, आज जब महकमे नौकरी में हमारे साथ बदसलूकी होती है, तो हम हर जगह हुकूमत की खता बताते हैं। जैस के सुन्नियों, ये बरकाती फकीर एक चीज की और दावत देता है तुम्हें, जहां तुम हुकूमत का जुल्म देख रहे हो, वहीं तुम अपने गिरेबान में झांक कर देख लेगा कि पैगंबर ने फरमाया था, जब मेरी कौम कुरान से हट जाएगी तो उस पर जालिम हुकूमत डाल दी जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा कदम रसूलुल्लाह के ढर्रे से अलग हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा तरीका मदीने वाले के तरीके से अलग हो गया है। अगर ऐसा है तो ये जालिम हुकूमत कुदरत की जानिब से तुम पर मुसल्लत हुई। हम आपको कैसे बताएं? जब आप सुनने के लिए तैयार नहीं होगे तो हम जादूगर नहीं कि जादू से पिला देंगे। कुर्सी पर बैठने वाला एक आलिम है, जादूगर नहीं है। आप अपने सीने का दरवाजा खोलोगे तो हम कुरान का वरक खोलेंगे तुम्हारे। आप तैयार हो ना? हाथों को उठा के बताओ हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। अब अगर सब लोग तैयार हो तो ये महफिल रसूलुल्लाह है। हर सुन्नी का अकीदा है कि मुस्तफा मदीने से आते हैं, और ये भी अकीदा है कि हर गुलाम को देखते हैं, हर गुलाम को देखते हैं। तो अगर हर गुलाम को देखते हैं तो रिजवान भाई को देखेंगे तो सर पे टोपी है, हमको देखेंगे तो सर पे इमामा है। तुम क्या सोच रहे हो? जिनके सर नंगे हो अपने सरों को ढांप ले, मुस्तफा देखने वाले हैं, सरों को ढांप लो बेटा। रसूलुल्लाह की निगाह से तुम्हारा दिल भी नहीं छुप सकता, सर क्या कम रहो, मगर तुम्हारे सीने में दम हो तो बहुत कुछ बातें मैं बता सकता हूं। वक्त कलील है, मगर मैं चाहता हूं कि कुछ तो सबक दे दूं। ऐसा न हो कि 50 साल से कराने वाले जलसा और मीलाद यही न जान सके कि मीलाद है क्या और मीलाद की शुरुआत कब से हुई है। ये जानना किसकी जिम्मेदारी है? जो मीलाद वाले हैं वही तो जानेंगे, और जो मीलाद से भागने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है। क्या आप में कोई बता सकता है कि सबसे पहले मीलाद किसने पढ़ी है? सबसे पहले मीलाद किसने पढ़ी है? सबसे पहले मीलाद अगर किसी ने पढ़ी है तो अल्लाह ने पढ़ी है। सबसे पहले मीलाद अल्लाह ने पढ़ी है। कैसे पढ़ी? तमाम नबियों की रूहों को इकट्ठा कर लिया। ये मैं कुरान का मफहूम बहुत आसान अंदाज में बता रहा हूं। कुछ काम की बातें भी ले लो ताकि तुम्हारा अकीदा तो सलामत रहे। हम कहते हैं नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दाढ़ी, लिबास, ये सब फूल और फल हैं, और ईमान जड़। जिस पेड़ की जड़ नहीं होगी फूल भी नहीं आ सकते। इसलिए ये भी जरूरी है कि जड़ों को मजबूत किया जाए। तो मैं अब अकीदे पे बात कर रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह ने सबसे पहले पढ़ी, तमाम नबियों को इकट्ठा कर दिया, उनकी रूहों को जमा कर दिया। आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबी सुन रहे हैं, मौला पढ़ रहा है। अल्लाह फरमाता है, ऐ नबियों की रूहों सुनो, एक जमाना आएगा जब मैं तुम्हें नबी बनाकर भेजूंगा, तुम्हारे उम्मती होंगे, तुम्हारा कलमा पढ़ा जाएगा, तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारे जलवे होंगे। लेकिन सुन लो, तुम्ही में से एक नबी ऐसा भी है जो सबसे ज्यादा मुझे महबूब है, जो सबसे ज्यादा मुझे प्यारा है। एक ऐसा भी नबी है, ये उसकी शान ये है कि उसी के सदक़े में तुम सबों को नबूवत अता कर रहा हूँ, उसी के सदक़े में तो मैं तुम्हें किताब अता कर रहा हूँ। सुन लो, जिसके जमाने में वो नबी आ जाए तो उस नबी की जिम्मेदारी होगी कि हमारे उस महबूब नबी पर ईमान भी लाए, मदद भी करे। ये न सोचे कि मैं खुद ही नबी हूँ, बल्कि हमारे उस नबी पर वो ईमान लाए। तमाम नबियों ने इकरार कर लिया, बारी ताला हम मानते हैं, उस पर ईमान लाएंगे। इसलिए सुन्नी कहता है कि सबसे पहले मीलाद पढ़ी तो अल्लाह ने, मगर जो हमारा हरीफ है, जो हमारा दुश्मन है, रिजवान भाई, जो हमारा दुश्मन है, वो जानते हो क्या कहेगा? चलो मानता हूँ कि मीलाद अल्लाह ने सबसे पहले पढ़ी, मगर सुन्नियों तुम तो अपनी मीलाद में लड्डू भी बांटते हो, तुम तो अपनी मीलाद में बताशा भी बांटते हो, तुम तो अपनी मीलाद में बिरयानी भी खाते हो। अल्लाह ने कहा बिरयानी बांटी थी, अल्लाह ने कहा बताशा बांटा था, अल्लाह ने कहा लड्डू बांटा था, लिहाजा वो मीलाद अलग थी, ये मीलाद अलग है, तुम उसको दलील क्यों बनाते हो? तो सुनो सुनो, मैं कहता हूँ कुरान में इसका भी जिक्र है कि वहाँ भी शीरीनी थी, मगर कुरान में तू नहीं पाएगा, तेरी आंख नहीं पाएगी नजमी। कुरान में पाने के लिए अली जैसी आंख चाहिए, अहमद रजा जैसी आंख चाहिए, मुफ्ती आजम जैसी आंख चाहिए। हम जब छोटे थे बचपन में, तो गांव में जब गरीबी थी तो उस वक्त शीरीनी के तौर पर सिर्फ बताशा रख दिया जाता, और तरक्की हुई तो लोग खुरमा बांटने लगे, और तरक्की हुई तो जलेबी बांटने लगे, और तरक्की हुई तो लड्डू बांटने लगे, और तरक्की हुई तो बर्फी बांटने लगे। अब तो एक ही आदमी पूरे मजमे को बिरयानी खिला देता है, लेकिन बताशा भी शीरीनी ही थी और बिरयानी भी शीरीनी ही है। मजा कुछ भी हो, जायका कुछ भी हो, कीमत कुछ भी हो, शक्ल कुछ भी हो, रसूलुल्लाह के नाम पर जो बांटा जाए वही तो शीरीनी है। जिक्र रसूल सुनने वालों को जो दिया जाए वही तो शीरीनी है। मिलाद में रहने वालों को जो दिया जाए वही तो शीरीनी है। तो बताशा भी शीरीनी थी, खुरमा भी शीरीनी है, जलेबी भी शीरीनी है, लड्डू भी शीरीनी है, बर्फी भी शीरीनी है, खीर भी शीरीनी है और बिरयानी भी शीरीनी है। मगर इंसान की ताकत महदूद है, इंसान मजबूर है, इंसान कमजोर है। कभी बताशा बांटता है, कभी लड्डू बांटता है, कभी खीर बांटता है, कभी बिरयानी बांटता है। मगर मौला की ताकत महदूद नहीं है, मौला की ताकत लामहदूद है। जब उसने बांटा तो बिरयानी नहीं बांटा, बल्कि उनको नबूवत बांट दिया, उनको रिसालत बांट दिया, उनको किताबें अता कर दिया। इसलिए अब अगर कोई कहे कि वहां शीरीनी नहीं बटी थी तो क्या जवाब होगा? कह दो वहां भी बटी थी, मगर अल्लाह ने नबूवत बांटी थी, हम कमजोर हैं, हम बिरयानी बांटी। शीरीनी वहां भी थी, शीरीनी यहाँ भी। अब जब आप दलील से साबित कर लोगे तो ये जालिम बड़े चालाक होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। अभी 4 साल पहले मेरे साथ एक वाकया पेश आया मलिहाबाद के करीब। मलिहाबादी आम सुने ना आप लोग? मलिहाबाद में एक बगल में गांव है जो खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों का गांव है। सुनिएगा तवज्जो से बच्चों, मलिहाबाद के बगल में एक छोटा सा गांव, सुन्नियों का गांव,
जहां का तरीका ये था कि रबीउल अव्वल का चांद जैसे निकलता, हर घर पर एक झंडा जरूर लग जाता था, हर घर पर, और मस्जिद पर सबसे बड़ा झंडा लगाया जाता था। ये पुश्तैनी तरीका उनका चला रहा था बरसों से, पुरखों से। मगर 4 साल पहले लखनऊ के एक बड़े मदरसे से पढ़कर, अब आप जान सकते हो सबसे बड़ा मदरसा किनका है। अब पता नहीं सही जगह पर है कि नदी नाले के बगल में है। बहरहाल एक बड़े मदरसे से पढ़कर 2 मौलवी गए, वो उसी इलाके के रहने वाले थे। उन लोगों ने कहा भाई साहब ऐसा है, झंडा तो ना कुरान में है ना हदीस में है, इस्लाम में झंडा है नहीं, लिहाजा झंडा लगाना बिदअत है। वो बिदात भी नहीं गए, झंडा लगाना क्या है, बिदात है, गुनाह है, और झंडा को उतार दो। तो उनके खानदान वालों ने उतार दिया, मगर जो गांव के और लोग थे उन्होंने सोचा कि हम लोग तौबा कर लेंगे, मगर हमारे बाप दादा भी तो लगा के चले गए कब्र में, उनकी तो पिटाई हो रही होगी। तो आखिर मामला ऐसा है कि अब दूध का दूध करा लिया जाए, किसी और आलिम को भी बुलाया जाए और मदरसे के भी लोगों को बुलाया जाए। तो अपने दारुल उलूम वारसिया की तरफ से मैं गया, एक और हमारे हम ख्याल कानपुर से आए 2 मौलवी वो थे, 2 लोग हम थे। जुमा का दिन था, तवज्जो से सुनिएगा कि ये हमारा जो जालिम है, आला हजरत ने उनके बारे में बताया है कि शहद दिखाए जहर पिलाए। उनकी फितरत क्या है, शहद दिखाए जहर पिलाए, दिखाते शहद है, होता है जहर। तो जुमा का दिन था, पब्लिक इकट्ठा हो गई। नमाजे जुमा के बाद हम 2 लोग इधर बैठे, वो 2 लोग उधर बैठे। अब उसमें का एक मौलवी खड़ा हुआ, उसने हमसे कहा भाई आप बताइए कि किसी सही हदीस में झंडे का जिक्र है, किसी सही हदीस में झंडे का जिक्र है। तो मैंने चूंकि तैयारी की थी, एक रसूलुल्लाह की सीरत की किताब है मवाहिबुल लदुनिया, बहुत ही मोतबर किताब। उस किताब को अरबी जबान में जो किताब है वही नुस्खा लेके मैं गया और मैंने खोल के दिखाया। मैंने कहा देखो हदीस लिखी है और इस हदीस की रिवायत अबू बकर नहीं कर रहे हैं, उमर नहीं कर रहे हैं, ताकि तुम कह सको कहीं कि रसूलुल्लाह जब पैदा हो रहे थे तो उमर कहाँ थे, वहाँ अबू बकर पैदा, जब रसूल पैदा हो रहे थे अबू बकर कहाँ थे, उमर कहाँ थे। इसलिए मैं किसी और की जबान से नहीं सुनाऊंगा, मैं तो रसूलुल्लाह की वालिदा की जबान से सुनाऊंगा। भाई वही तो बता सकती है कि पैदाइश के वक्त क्या हुआ, माँ ही तो बता सकती है कि वहाँ क्या हुआ। तो मैंने कहा देखो आमिना कहती है कि जब मेरा लाल पैदा हुआ, जब मेरा लाल पैदा हुआ तो चेहरे से इतना नूर फूटा कि सारी दुनिया रोशन हो गई। और जब सारी दुनिया रोशन हुई तो अल्लाह ने मेरी आंखों से पर्दे हटा दिए। जब मेरी आंखों से पर्दे हटे तो मैंने सारी दुनिया देखा और मैंने 3 झंडे भी देखा। कह दो सुभान अल्लाह। आमिना कहती है मैंने 3 झंडे देखा। एक झंडा दुनिया के एक कोने में था, दूसरा झंडा दुनिया के दूसरे कोने में था और तीसरा झंडा बीचों बीच काबा की छत पे लगा था। ये कौन कह रहा है, कौन कह रहा, बोलो। झंडा लगाने वाले जवानों, अब तुम्हारे झंडे पर अगर कोई एतराज करे तो आमिना की बात सुना के उनकी ज़बानें खींच ले दो। आमिना कहती है मैंने 3 झंडे देखा। एक झंडा दुनिया के एक कोने पर, दूसरा झंडा दुनिया के दूसरे कोने पर और तीसरा झंडा काबे की छत पे लगा था। मैंने पलट के गरजदार आवाज में कहा ऐ मौलवी अब तू बता। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, आमिना की जबान से हदीस सुना दिया और मैंने दिखा दिया कि 3 झंडे लगे थे। कब लगे थे? जब मुस्तफा पैदा हुए थे तब 3 झंडे लगे थे। अब तुम बता दो वो झंडे किसने बनाए थे, वो झंडा किसने लगाया था? क्या तुम्हारे मलिहाबाद में बना था या हमारे अमीनाबाद में बना था? वो झंडा कहाँ से आया था? वो झंडा किसने बनाया था? अरे उस वक्त तो मलिहाबाद भी नहीं था, उस वक्त तो अमीनाबाद
जैसे सांप ने सूंघ लिया हो, मुंह पे ताला लग गया, कुछ नहीं बोला। जब वो खामोश हो गया तो मैंने पलट के कहा, मुझसे सुनो, उस झंडे को किसने लगाया, उस झंडे को किसने बनाया? जब नबी पैदा हो रहे हैं तो उनकी अजमत जाहिर करने के लिए झंडा बनाया खुदा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।